Hello everyone, welcome to Legal Update. Today's topic for discussion is Women can be charged with sexual assault on boys. Y News recently the Karnataka High Court in X versus Y has said that a woman who manipulates or induces a child, a minor boy, to penetrate her is a circumstance that falls squarely within the ambit of penetrative sexual assault under Section 3 of the POCSO Act. Background of the case: a 52-year-old woman in Karnataka was accused of manipulating a 14-year-old boy into penetrating her. She was charged under Section 4 and 6 of the POCSO Act 2012 for penetrative and aggravated sexual assault. The defense argued that Section 3, 4 and 6 of the POCSO Act, traditionally interpreted for male perpetrators, did not apply to women. The petitioner's counsel contended that the law's reference to word penetration excludes women offenders. However, the prosecution maintained that the POCSO Act aims to protect children from sexual abuse, regardless of the gender of the perpetrator. The allegations, they argued, clearly fell under the Act's definition of penetrative sexual assault. What were the court observations? Justice M. Nagaprasanna clarified that the term "a person" in Section 3 of the POCSO Act is gender neutral and applies to both male and female offenders. It extended the scope of the law to cover cases where a woman induces or manipulates a minor to commit penetrative sexual assault. The court dismissed the argument that women are passive in sexual acts, asserting that such outdated stereotypes no longer hold in modern legal interpretation. The court emphasized that psychological responses such as erection are not controlled by psychological states like shock. Provisions in bold: Section 3 of the POCSO Act, which defines penetrative sexual assault, including when the accused induces or coerces a child to commit such an act. Second, Section 4 and 6 of the POCSO Act, which defines punishment for penetrative sexual assault and aggravated penetrative sexual assault. It's the time for practice question. Which psychological aspect did the court emphasize in dismissing the defense of shock affecting the possibility of penetration? Option A: psychological factors control psychological responses. Option B: psychological responses may occur despite psychological shock. Option C: both psychological and physiological factors are irrelevant in sexual assault cases. Option D: shock prevents psychological responses. Pin down your answers in the comment section below. लीगल अपडेट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है महिलाओं पर लड़कों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कर्नाटका उच्च न्यायालय ने एक्स बनाम वाई मामले में कहा है कि एक महिला जो किसी बच्चे नाबालिग लड़के को अपने साथ पेनिट्रेट करने के लिए प्रेरित करती या उकसाती है तो वह ऐसी परिस्थिति है जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के तहत पैठ करने वाले यौन उत्पीड़न की परिधि में पूरी तरह से आती है। आइए अब जानते हैं मामले की पृष्ठभूमि। कर्नाटका में एक 52 वर्षीय महिला पर 14 साल के एक लड़के को बहकाकर उसके साथ यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। उस पर पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 और 6 के तहत यौन उत्पीड़न और गंभीर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि पॉक्सो अधिनियम की धाराएं 3, 4 और 6, जिनकी पारंपरिक रूप से पुरुष अपराधियों के लिए व्याख्या की जाती है, महिलाओं पर लागू नहीं होती। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कानून में पेनिट्रेशन शब्द का उल्लेख महिला अपराधियों को इसके दायरे से बाहर रखता है। हालांकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, चाहे अपराधी किसी भी लिंग का हो। उन्होंने तर्क दिया कि ये आरोप स्पष्ट रूप से अधिनियम की पेनिट्रेशन सेक्सुअल असल्ट हमले की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। आइए अब नजर डालते हैं न्यायालय की टिप्पणियों पर। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने स्पष्ट किया कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 में व्यक्ति शब्द लिंग तटस्थ है और पुरुष व महिला दोनों अपराधियों पर लागू होता है। इसने कानून का दायरा बढ़ाकर उन मामलों को भी शामिल कर लिया है जहां कोई महिला किसी नाबालिग को यौन उत्पीड़न के लिए प्रेरित या बहकाती है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि महिलाएं यौन क्रियाओं में निष्क्रिय होती हैं तथा इस बात पर जोर दिया कि ऐसी पुरानी रूढ़िवादिता अब आधुनिक कानूनी व्याख्या में मान्य नहीं है। कोर्ट ने यह जोर दिया कि शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे इरेक्शन मानसिक स्थितियों जैसे सदमे द्वारा नियंत्रित नहीं होती। आइए अब नजर डालते हैं शामिल प्रावधानों पर। पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 पेनिट्रेटिव यौन हमले को परिभाषित करती है, जिसमें अभियुक्त द्वारा किसी बच्चे को ऐसा कृत्य करने के लिए प्रेरित करना या मजबूर करना भी शामिल है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 पेनिट्रेटिव यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमले के लिए दंड को परिभाषित करती है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।
पेनिट्रेशन की संभावना को प्रभावित करने वाले आघात के बचाव को खारिज करते हुए न्यायालय ने किस शारीरिक पहलू पर जोर दिया? विकल्प ए मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विकल्प बी मनोवैज्ञानिक आघात के बावजूद शारीरिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। विकल्प सी यौन उत्पीड़न के मामलों में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों कारक अप्रासंगिक हैं। या विकल्प डी आघात शारीरिक प्रतिक्रियाओं को रोकता है। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।